Better? This is fine. ठीक है. So let's wait for a couple of minutes. I am putting myself on mute, okay? ठीक है, perfect. आई थिंक बिस्मिल्लाह करते हैं. 3:01 हो रहा है. वी थॉट कि हम थोड़ा वेट कर लेंगे कि पार्टिसिपेंट्स और आ जाए, क्योंकि अभी एडिशन हो रहा है पार्टिसिपेंट्स का. we have about 70 participants at the moment, 69 है to be exact. I think I'll begin. Welcome to all of you. Assalamu alaikum सबसे पहले, and welcome to all of you to the webinar. अभी तक ये परसेप्शन था कि कोई भी कंपनी आती है स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने के लिए, तो उसका लिस्टिंग का मकसद होता है कि कैपिटल रेज किया जाए. दैट द रीजन दैट कंपनीज कम इज दैट दे वांट टू रेज कैपिटल, ब्रिंग इन मनी, टू डाइवर्सिफाई, टू expand their operations, to expand into other streams of business and so on. इसके साथ साथ बहुत सारे और सीरीज ऑफ बेनिफिट्स हैं और which companies can avail by listing. आज का वेबिनार का मेजर फोकस है कि हम उन सारे बेनिफिट्स के ऊपर बात करें, और हमारे साथ शाहिद अबीब साहब हैं मौजूद, जो हमें इन सारा पर्सपेक्टिव एक इंसाइट देंगे कि और क्या बेनिफिट्स हैं अदर देन जस्ट रेजिंग कैपिटल, जो कि कंपनीज लिस्ट होने के बाद अवेल करती हैं और उन्हें वो उनके लिए मुफीद होते हैं. सो वी विल टॉक अबाउट दैट टुडे, क्योंकि इट जस्ट नॉट not only leads to major होता है intergenerational transfer of wealth in a tax efficient manner. ये तो मैं एक summarized version दे रही हूँ. तो hopefully the listeners and viewers आज के वेबिनार के बाद एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी कि कंपनीज को ये क्या क्या फवायद हासिल होते हैं. हमारे साथ शाहिद अली हबीब साहब हैं. शाहिद अली हबीब साहब is the chief executive of Arif Habib Limited. He has been involved in the financial markets for over 24 years, mashallah, experienced person. He has a vast experience across the board in brokerage, corporate finance, investment banking. He has worked on over 50 transactions and raised more than PKR 350 billion across equity, structured equity and bonds for both corporate and sovereign clients.
आज हम उन्हें इसके लिए हमने दावत दी है, वो हमारे पोटेंशियल इशूअर्स और ऑडियंस को ब्रीफ करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शाहिद साहब के बारे में मैं बताती चलूं, ही हैज लेड द लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट ट्रांजैक्शन, जो कि HBL की सेकेंडरी ऑफरिंग थी, जिसकी वर्थ थी अराउंड 107 बिलियन रुपीज। फ्यू अदर प्रोमिनेंट ट्रांजैक्शंस जो शाहिद साहब के अंडर उनकी कंपनी ने भी की है, इंक्लूडिंग UBL secondary offering and Engro fertilizers. So thank you, Shahid Saab, you've joined us today. Thank you, I will begin with my first question right away. We often hear about how public limited companies are more visible and are a topic of discussion. Could you brief us a bit about how transitioning into a listed company impacts a company's visibility, its branding, and overall growth of the company? क्या हम सही बात कर रहे हैं ये assume करके कि होती है positive impact, and क्या क्या होता है थोड़ा हमें बताइए जी। Over to you, Shahid. Thank you so much, Raida. Thank you for giving me an opportunity and inviting me on this very important webinar. और इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ equity raising ही नहीं होती, बल्कि दूसरे भी बहुत सारे advantages हैं जो कि हमें elaborate करने चाहिए, और जिसका advantage company को बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें मैं it's an excellent initiative. I would say that the stock exchange should continue doing this thing to give more and more opportunity to potential issuers. और मेरा ख्याल से इससे होगा ये कि इससे, और ये जो टेक्नोलॉजी अब आ गई है, जूम टेक्नोलॉजी, वर्चुअल मीटिंग, इसकी वजह से you are attracting large pool of potential issuers. So thank you so much and congratulations to you as well. As far as your question is concerned, you are very right that a listing company attracts more visibility by investors, by analysts, by customers, by suppliers, by business partners. Not only equity raising there, but there are vast number of visibility is there from various stakeholders. और उसमें ये स्टेक होल्डर्स में इशूअर्स इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, दूसरे इशूअर्स आ जाते हैं जो उसको देख रहे होते हैं, कंपैटिटर्स आ जाते हैं, एनालिस्ट आ जाते हैं जो उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे होते हैं। और जब वो देख रहे होते हैं तो वो इन्वेस्टर्स को गाइडलाइन दे रहे होते हैं कि ये इसका ग्रोथ स्टोरी क्या है और इसमें कैसी इवन ट्रांसपेरेंसी कैसी है। तो ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो हम कहते हैं और ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, उसका बहुत बड़ा एक एडवांटेज होता है जो कि लिस्टेड कंपनी होने की वजह से आपको इनकलकेट करना होता है। और चूंकि जब आप क्वार्टरली अकाउंट्स दे रहे होते हैं, हर 3 महीने में आप अकाउंट्स दे रहे होते हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। जैसे मेरी कंपनी भी, although we are in service related industry, और हम लोग कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार हम तो ब्रोकरेज कर रहे होते हैं और हम तो ट्रांजैक्शंस को के लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इट्स नॉट अ गोइंग कंसर्न। ट्रांजैक्शंस तो हो रही होती हैं लेकिन कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न तो नहीं है ना, कि सीमेंट बिक रहा है या कोयला या आपका स्टील बिक रहा है, तो और उसकी खपत है मार्केट में, उसकी डिमांड है, तो वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो हम कभी कभी देखते हैं कि यार हम क्यों इतना प्रेशर लें, लेकिन मुझे फिर बाद में कभी कभी अंदाजा होता है कि इस प्रेशर का एडवांटेज बहुत ज्यादा होता है कि हम ऑन द टोज होते हैं। तो मैनेजमेंट विल रिमेन ऑन द टोज, सो इट इज बेनिफिट for the shareholders, for the sponsors to make the company listed, to keep the management more performance oriented, to keep the management on the toes. और उससे होता ये है कि जब आप बोर्ड में बैठते हैं, so you can segregate the duties. I mean, the management is different, the stakeholders are different, the board is different. ठीक है ना, the board जो है वो अपना फिर अच्छे तरीके से वो अपना व्यू देता है। अब कभी कभी मैनेजमेंट ये हो जाती है कि मैनेजमेंट बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक हो जाती है, वो सिर्फ रेवेन्यू की बात कर रही होती है, किस तरीके से हम ट्रांजैक्शंस को लें, किस तरीके से हम अपना ग्रोथ स्टोरी लेके आए। और जो बोर्ड होता है जब वो हर 3 महीने में मिलता है तो वो एक दूसरे जाविये से आता है, उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं उसमें। तो उसकी वजह से एक तो ट्रांसपेरेंसी हो जाती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो जाती है, और आउटलुक ऑफ द इंडस्ट्री बेहतर हो जाती है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं। और ये आप फिर एनुअल कॉर्पोरेट ब्रीफिंग्स भी जब करते हैं तो आपकी इससे और ज्यादा इन्वेस्टर्स के साथ आपकी एंगेजमेंट होती है, और इससे आपकी प्रेस्टीज भी बढ़ती है, आपका ब्रांड भी बढ़ता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स उसमें आना शुरू होते हैं, जब फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं तो वो वैल्यूएशन क्रिएट हो जाती है।
तो जो लिस्टिंग होती है, जो आपने रायता जो आपने कहा ना कि जब आपने इनिशियल लिस्टिंग करी उसमें तो आपका एक कैपिटल आपने रेज कर लिया, आपने वो कैपिटल ग्रोथ के लिए यूज कर लिया, लेकिन इसके बाद पोस्ट आईपीओ जो आपकी परफॉर्मेंस होती है, अब पोस्ट आईपीओ परफॉर्मेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि प्राइस बढ़ जाए, पोस्ट आईपीओ परफॉर्मेंस का मतलब है कि आपकी सेल्स बढ़े, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, क्योंकि हमने जो पिछली ट्रांजेक्शनें पिछले 10 साल में ट्रांजेक्शन 15-20 साल में हुई हैं उसमें अगर आप, क्योंकि हमारी मार्केट बिकॉज ऑफ डीवैल्यूएशन, बिकॉज ऑफ अदर मैक्रो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से इतनी नहीं बढ़ी, लेकिन अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो माय गॉड इट्स एन एक्साइटिंग परफॉर्मेंस। मतलब मैं आपको बताऊं कि इवन कोविड के पीरियड में जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी पूरे लिस्टेड स्पेस की 500 बिलियन से 1000 बिलियन हो गई। तो फिर हम समझे कि कोविड के पीरियड के बाद ये तो वन ऑफ है, तो वन ऑफ के बाद 20% और बढ़ गई, मतलब 2022 में 20% की ग्रोथ हो गई। तो ये सब वो सब ये इसकी किस वजह से, ये लिस्टेड होने की वजह से। तो आपकी ग्रोथ सिर्फ इनिशियल कैपिटल से नहीं आ रहा, आपकी ग्रोथ इसलिए भी आ रही है कि आप बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आप लेके आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, बहुत कंफर्टेबल हो रहे हैं और आपकी कंपनी में पैसे डाल रहे हैं और आप फिर और फर्दर उस पैसे को यूज कर रहे हैं। अब राइट शेयर भी आप कर देते हैं, कभी कभी आप अपने शेयर्स को एज ए कोलैटरल भी यूज करते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज जो कि हम बताते हैं अब इशूअर्स को कि भाई आप जब लिस्ट हो जाते हो तो वो शेयर्स आप यूज कर सकते हो एज ए कोलैटरल टू रेज फर्दर फंडिंग। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स आता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए तो लिस्टेड इंस्ट्रूमेंट ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो देखते हैं, जिसकी विजिबिलिटी होती है, ब्लूमबर्ग पे देख रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, तो उसमें उनका कॉन्फिडेंस भी होता है क्योंकि उसमें उनकी ट्रांसपेरेंसी का जो डिग्री है वो थोड़ी ज्यादा होती है, तो उनको एक कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होता है। तो डेफिनेटली देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ लिस्टिंग other than just the equity raising, initial equity raising. Great, thank you शाहिद साहब। In fact बिल्कुल आपने सही कहा कि from एक the और point चीज रायदा, एक और चीज सॉरी मेरे याद आई, मैंने कहा एक तो जब हम बात करते हैं ना इंश्योर से तो ऑडिटर की भी बात करते हैं। तो जो आप ग्रेजुएट करते हैं अपने ऑडिटर के सिलेक्शन में ग्रेजुएट कर जाते हैं, ठीक है ना, आपका अगर सेकंड ईयर ऑडिटर अगर है तो आप चाहते हैं कि हम फर्स्ट ईयर में जाएं और एक बहुत बड़ा डिसीजन करना होता है, मतलब स्पॉन्सर्स को ये डिसीजन में टाइम लगता है। तो ये बड़ा मतलब इसमें हमने जो फेस किया है, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बड़ा सोचते हैं कि हम यार ऑडिटर को चेंज करें कि नहीं करें। अच्छा, उससे पूरे मुल्क का फायदा होता है। फायदा इसलिए होता है कि वो किसी किसी की थोड़ी सी ऐसी होती हैं कि डबल बुक्स होती हैं, वो अपने आप को कन्वर्ट करते हैं। जब कन्वर्ट करते हैं तो वो टैक्सेस भी ज्यादा हो जाते हैं। हम उनको समझाते हैं कि आपका इंक्रीमेंटल टैक्स का इतना नुकसान नहीं है जितने आपकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। तो वो उसको फिर उस ऑप्शन को ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं कि मेरी वैल्यूएशन ज्यादा बेहतर हो जाएगी, ना कि मुझे कैश टैक्सेस मेरे बढ़ जाएंगे। तो वो बड़ा अच्छा हो जाता है। तो इससे एक कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी भी होती है, एफिशिएंसी भी बढ़ती है। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक्सेस टू डेट मार्केट बढ़ जाता है। जब अगर आप लिस्टेड होते हैं तो आपको बैंक्स और जो दूसरे फाइनेंशियर्स जो हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल तरीके से पैसे देते हैं। तो वहां से आप वहां से फर्दर रेज करते हैं कैपिटल, फिर फर्दर आप उसको यूज करते हैं अपने एक्सपेंशन में। तो ये ऑल टुगेदर इट्स देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स दैट विल ऐड टू योर ग्रोथ व्हाइल यू गेट लिस्टेड। Great, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब फॉर सच अ डिटेल्ड आंसर। एंड बिल्कुल सही आपने कहा कि फ्रॉम द पॉइंट कि एक कंपनी आती है और अपने आप को पब्लिक उसमें लेकर आती है, तो उस दिन से ही उसकी ये जर्नी ऑफ रिकग्निशन स्टार्ट हो जाती है। प्रोस्पेक्टस बनता है और वो सर्कुलेट होता है, रोड शोज होते हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं वो उनके लिए कैपिटल रेजिंग के लिए जो एक्टिविटीज करते हैं उससे ही मार्केटिंग शुरू हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स once they're listed तो वो मटेरियल डिस्क्लोजर की वजह से, बिकॉज आपके शेयर होल्डर्स हैं, आपको आपके शेयर होल्डर्स को अपडेट रखना होता है, तो आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी दे रहे होते हैं और अखबार भी आपकी न्यूज और ये सारी चीजें कवर कर रहे होते हैं। सो दैट्स वेरी गुड। इससे आगे बढ़ते हैं नाउ, एज यू ऑल्सो मेंशन्ड इन योर जब आप आंसर कर रहे थे कि बोर्ड फॉर्म होता है,
Now, board of directors are very integral in the strategic decision making of a company. Unlike a public listed company, normally आज हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज जो चाहे पब्लिक ना भी हो और पब्लिक लिस्टेड ना भी हो, वो भी बोर्ड अपना सेटअप करती हैं और डायरेक्टर्स का बोर्ड बनाती हैं. बट in the realm of a public listed company, the board not only appoints the chief executive, it has an important say in decision making. Could you explain, in your experience of dealing with a number of companies, how important it is to have a proper board structure, especially independent directors, उनका क्या रोल है as required for a listed company? कहते हैं कि जी कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए और बोर्ड का एक सर्टेन स्ट्रक्चर होता है. थोड़ा वो बताएं एंड देन उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर थोड़ा एलैबोरेट करें. जी. I think right that it is extremely important to have a proper board structure for a listed company with proper proportion of executive, non-executive, independent, and female director as well. I mean, there is a requirement of at least one female director as well in the board. So that is also very important. I think there are mandatory committees as well, जिसमें audit committee भी है और HR और remuneration committee भी है. ये एक mandatory committee होती है listed में. तो जो प्रॉपर बोर्ड स्ट्रक्चर है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसकी वजह ये होती है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि जो मैनेजमेंट है ना, वो तो काम कर रहे होते हैं और वो अपने 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 टारगेट्स के ऊपर लगे हुए होते हैं दिन रात. लेकिन जब वो क्वार्टरली मीटिंग्स होती हैं और जब वो बोर्ड के सामने बैठते हैं तो वो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस की बात करते हैं और उसके ऊपर वो डिसीजन मेकिंग करने की कोशिश करते हैं. और उसके लिए एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है बोर्ड के सामने. बोर्ड का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं वो भी डाइवर्स बैकग्राउंड से हों, ताकि वो वैल्यू क्रिएट कर सकें कंपनी के अंदर. जो रिक्वायरमेंट है, अगर 7 का जो है बोर्ड है तो उसमें एटलीस्ट 2 जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए और 2 से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं हो सकते. तो ये रिक्वायरमेंट बड़ी एक एक्सरसाइज के बाद और बड़ी एक जो बाहर की जो मिसालें हैं उसके बाद किया गया है. और उसमें एक मैंने देखा है कि जो IPOs हुए हैं उनमें ये जो बोर्ड बहुत सारे तो ऐसे हैं जो IPO से पहले ही 1 साल 2 साल पहले ही ये एक्सरसाइज करते हैं. और उनसे हमारा जब एक्सपीरियंस होता है तो कहते हैं कि ये बड़ा हमारे लिए एडवांटेज होता है और हमारे लिए बड़ा यूजफुल रहा है हमारी ग्रोथ में और हमारी डिसीजन मेकिंग में. क्योंकि वो मैनेजमेंट की रिकमेंडेशंस जो होती है ना, वो कभी कभी मैनेजमेंट की रिकमेंडेशंस वो मैनेजमेंट ढूंढ रही होती है कि हम किससे सेकंड ओपिनियन लें. तो जब वो बोर्ड के सामने जाते हैं तो बोर्ड जब एक डाइवर्स बैकग्राउंड से आ चुका होता है जिसमें प्रॉपर स्किल सेट भी होता है उसके अपने बैकग्राउंड का, तो वो फिर आइडिया देते हैं और वो जरा लॉन्ग टर्म 10 साल 15 साल की जर्नी का सोच रहे होते हैं और उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा व्यू बनाते हैं. तो मेरे ख्याल से बोर्ड का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है ग्रोथ में. उनकी जो गवर्नेंस सिस्टम होता है, इट इज ऑल्सो लिंक्ड विद द कॉम्पिटेंस एंड इंडिपेंडेंस एंड इंडिविजुअल कमिटमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स एज वेल. जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो आपने बात करी, उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है कि वो ओवरऑल कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. फ्रेमवर्क और रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी को देखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई डिजास्टर हो जाए. तो किस तरह, जैसे कोविड का पीरियड आया, जैसे 2008 का हमारा इशू आया, तो उसमें बोर्ड उन सब सारी चीजों को भी देख रहा होता है, उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम. अगर आप एग्जिस्टिंग लिस्टेड स्पेस में अगर आप देखें कि जिसका बोर्ड बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट, जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ज्यादा हैं, जिसमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ज्यादा हैं, आप देखेंगे कि उनका प्राइस अर्निंग मल्टीपल बेहतर होता है. ठीक है ना. आप देखें कि जो एंग्रो कॉर्पोरेशन हो गया, एंग्रो फर्टिलाइजर हो गया, आप देखें लकी सीमेंट हो गया, सिस्टम्स हो गया, इन सब के जो इंटरलूप हो गया टेक्सटाइल स्पेस में, तो इन सब के प्राइस अर्निंग मल्टीपल उस इंडस्ट्री के प्राइस अर्निंग मल्टीपल से, उस सेक्टर के प्राइस अर्निंग मल्टीपल से बेहतर है. और इसकी वजह यही है कि ये अच्छा बोर्ड स्ट्रक्चर है जो कि अच्छी डिसीजन मेकिंग करता है, जिससे इन्वेस्टर्स को एक कंफर्ट मिलता है, जिससे बाहर के इन्वेस्टर्स को और ज्यादा कंफर्ट मिलता है, क्योंकि बाहर ये चीजें बहुत ज्यादा हैं. बाहर तो इवन जो मैनेजमेंट है उसकी शेयर होल्डिंग बहुत कम होती है, वो बहुत ही कम शेयर होल्डिंग से वो चला रहे होते हैं. यहाँ पे तो ऑल्दो 50-51% से ज्यादा का होना होता है, लेकिन बाहर तो
उससे कम भी चल रहा होता है। बाय द वे यहाँ पे भी कुछ कंपनीज हैं जो कम शेयर होल्डिंग से भी मैनेजमेंट कर रही हैं और जो कि बहुत ही अच्छी जो है वो हिस्ट्री बन रही है हमारी। तो मेरा ख्याल से बोर्ड पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और बोर्ड माशाल्लाह से जितने भी पिछले आईपीओ आए हैं उन्होंने रोल अच्छा प्ले किया है to improve their growth trajectory and to improve their transparency and the audit requirements as well. Great, thank you शाहिद। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं थोड़ा सा इसमें और एक और चीज भी ऐड करती चलूंगी जो आपने थोड़ा सा टच अपॉन भी किया था कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को। जो जब कोई कंपनी आके स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है तो वो अपना एक सर्टेन परसेंटेज मार्केट में दे रही होती है और उसके कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं 5,000, 10,000, 15,000 जिन लोगों ने आईपीओ के थ्रू या सेकेंडरी मार्केट के थ्रू सब्सक्राइब किए होते हैं शेयर। तो उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं और ये कंपनी के लिए एक मौका होता है कि वो एक अच्छे से अच्छा एक्सपर्ट को लाके अपने बोर्ड पे इंट्रोड्यूस करें एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जिसकी उनको जरूरत है। अगर उनको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है, टैक्स से रिलेटेड किसी की जरूरत है, किसी इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक्सपर्ट की जरूरत है, ये एक मौका होता है टू get external directors, independent directors who are experts in their field। और ये सारी डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की लिस्ट हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है जो कि सर्टिफाइड डायरेक्टर्स अवेलेबल होते हैं। कंपनीज के लिए पूल होता है टू सेलेक्ट एंड ऑफर देम टू बिकम देयर directors and come onto their board. So good opportunity for a company to maximize their board strength, which will obviously lead down to the company. अच्छा रायदा, इसमें एक और चीज मैं बताता चलूं कि ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि ये जो जैसे बोर्ड स्ट्रक्चर आपका अच्छा हो और आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अच्छे हों, तो हमने देखा है कि जो कंपनीज ने ये किया है, इवन अगर उनका आईपीओ अगर छोटा भी हुआ है, फर्ज करें कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जो हबीब बैंक का आईपीओ हुआ था और तो आईपीओ का साइज भी बड़ा था, 12 बिलियन का आईपीओ हुआ था 2005 में या 7 में। और जब हमने इसको 2015 में, जैसे आपने खुद भी कहा कि 107 बिलियन जो हमने रेज किए, वो 107 बिलियन हमने इसलिए नहीं रेज किए, हम तो आईपीओ के तौर पे तो नहीं कर सकते थे 107 बिलियन। 12 बिलियन हुए आईपीओ में, लेकिन 107 बिलियन सेकेंडरी ऑफरिंग में हुए और वो इसलिए हुए कि उसकी जर्नी, उसका बोर्ड, उसमें वैल्यूएशन डिफरेंट काइंड ऑफ, इसी तरह यूबीएल में हुआ। यूबीएल में मुझे याद पड़ता है कि 5-6 बिलियन की रेजिंग हुई थी आईपीओ में और बाद में जाके 40 बिलियन की रेजिंग हुई सेकेंडरी ऑफरिंग की। इसी तरह एंग्रो में सेकेंडरी रेजिंग जो है 20 बिलियन की रेजिंग हुई जो 2017 में। वो भी इसी वजह से हुई कि उसमें दूसरे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इतने जबरदस्त थे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया। तो वो सारी चीजें उसी वक्त होती हैं जब आपका बोर्ड स्ट्रक्चर अच्छा हो, जब आपकी ट्रांसपेरेंसी हो, जब आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आता है। थोड़ा एक और एस्पेक्ट मैं चाहूंगी आप टच अपॉन करते चलें व्हाइल वी ऑन द बोर्ड के कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट है कि जी बोर्ड बनाए और उससे बोर्ड कमिटीज का भी है, थोड़ा उसको भी एक टच अपॉन करें प्लीज। एंड एक और एरिया है जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, वो उसमें ओनर है जो सीईओ भी है और वो ओनर भी होता है और कोई बोर्ड एज सच नहीं है। हमने बहुत सारे ऐसी कंपनीज को वाइप ऑफ और क्लोज डाउन, वन मैन शो होते हैं और वो एक्सटिंक्ट और खत्म होते हुए भी देखा है ना। बोर्ड का क्या रोल है कंपनी की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की कंटिन्यूटी, लॉन्जिविटी और इंटरजेनरेशनल ट्रांसफर के ऊपर, उसके ऊपर जरूर थोड़ा सा बात करें। बिकॉज आई थिंक पाकिस्तान में हमारी कंपनीज को बहुत मेजर चैलेंज है कि फैमिली ओन बिजनेसेस से स्टार्ट होते हैं और वो कई मर्तबा डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं क्योंकि जी फैमिली स्प्लिट हो गई तो जी बिजनेस भी स्प्लिट हो गया। वो नेक्स्ट जनरेशन में उस तरह स्ट्रांग होके ओवर 2, 3, 4 जनरेशंस नहीं जाता। वर्सेस दैट अगर हम लिस्टेड कंपनीज में देखें तो ये एक है एक केस इन पॉइंट है, एडवांटेज है, तो उसको जरा इलैबोरेट जी बिल्कुल रायदा, आपने बड़ा अच्छा टच अपॉन किया। क्योंकि जो जब कहते हैं आईपीओस के बहुत सारे पर्पसेस, उसमें से एक पर्पस ये भी होता है कि कंटिन्यूटी अक्रॉस जनरेशंस, ठीक है ना। चाहे
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जैसे आपने कहा कि एक जनरेशन ने काम किया और फिर उसके बच्चे हैं, बच्चों कुछ बच्चे जो है उनको उनका उस इंडस्ट्री में काम करने का मूड नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट चाइल्ड टू सेल हिज और हर एसेट्स टू हिज सिबलिंग्स, ठीक है ना। तो इसमें ये फायदा हो जाता है कि अगर आप लिस्टेड होते हैं, अगर आपका ये कंटिन्यूटी रहता है, बिजनेस में कोई इम्पैक्ट नहीं आता और बिजनेस चलता रहता है, और जनरेशन्स जो हैं वो जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, जो इसमें वैल्यू क्रिएट करना चाहती हैं वो रहती हैं, जो नहीं करना चाहती हैं वो अपना सेल ऑफ करती हैं और कोई और चीज में इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक सिस्टम कंटिन्यू रहता है। और ये जो आपने बिजनेस कंटिन्यूटी और लॉन्जेविटी की जो बात करी ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस से। और वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है जहाँ पे प्रॉपर बोर्ड स्ट्रक्चर और कमिटीज हों, जिसमें बैलेंस हो शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट और मैनेजमेंट का इंटरेस्ट। मैनेजमेंट का इंटरेस्ट अलग होता है, शेयर होल्डर का इंटरेस्ट अलग होता है, इसमें सप्लायर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, इन सब का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। तो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो एक सेफ गार्ड करता है और इंटरेस्ट और बूस्ट करता है शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट थ्रू सेटिंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द कंपनी एंड अपॉइंटिंग एंड मॉनिटरिंग केपेबल मैनेजमेंट। तो वो मैनेजमेंट को केपेबल मैनेज करने के लिए उनको वो रखता है। और ये बहुत ही एक इसेंशियल इंग्रेडिएंट है सक्सेस ऑफ द बिजनेस के लिए। और ये इट हेल्प्स द बिजनेस कंटिन्यूटी और लॉन्जेविटी। तो हमने बहुत सारे आईपीओ जैसे देखे हैं जिसमें डिग्री ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो ज्यादा है, और जिसकी वजह से आप उसमें लोकल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो है उसको प्रीमियम देते हैं। तो यही वजह होती है कि जहाँ पे बिजनेस कंटिन्यूटी और लॉन्जेविटी का एलिमेंट है, जहाँ पे प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, वहाँ पे जो है वो ज़्यादा आगे ग्रो करती हैं। आप एंग्रो की, आप इंटरलूप की, आप लकी की और दूसरे एवेंसियन की जब एग्जाम्पल अगर आप देते हैं, तो ये सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी डिग्री ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो बेहतर है, जिससे आपकी बिजनेस कंटिन्यूटी और लॉन्जेविटी में बड़ा फायदा होता है। और वो कंपेयर टू प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। आप खुद देखें कि दुनिया भर में अगर आप देखें जो जब हम देखते हैं कि हु इज द रिचेस्ट पर्सन, वो वही होता है जो लिस्टेड स्पेस में होता है। तो अगर अगर टेस्ला का चेयरमैन या सीईओ अगर है तो वो इसलिए है कि वो लिस्टेड स्पेस में है, और उसकी वजह नहीं है कि उसने कोई इनिशियल आईपीओ किया और इसके बाद ही हो गया। इसके बाद जो है उसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसके बाद उसकी जो बिजनेस कंटिन्यूटी के जो एट्रीब्यूट्स और ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एट्रीब्यूट्स, इसकी वजह से ही ये बड़े बड़े बनते हैं। आप जो है आप माइक्रोसॉफ्ट को देखें, आप अमेजोन को देखें, इन सब को देखें, तो ये सारी लिस्टेड स्पेस में है। इसी वजह से इनके जो ओनर्स हैं और इनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं वो आज दुनिया के रिचेस्ट लोगों में शुमार होते हैं। तो इसका बहुत बड़ा एलिमेंट है रायता। ग्रेट, बहुत शुक्रिया। आई थिंक आपने कुछ इंटरनेशनल एग्जांपल्स दिए। आपने अपनी एक्सपीरियंस में आपने बहुत सारी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस देखी हैं एज अ कंसल्टेंट, जिसमें एक मेजॉरिटी नंबर कुछ तो आपने खुद भी कराई है और कुछ इंडस्ट्री में भी देखी है, बिकॉज यू बीन इन द इंडस्ट्री फॉर क्वाइट सम टाइम। तो कुछ आप 2 या 3 ऐसी कंपनीज की अगर बात करें, उनकी केसेस हमसे शेयर करें जिन्होंने लेट्स से इन द लास्ट 10 इयर्स लिस्ट किया हो, जो जिन्होंने सक्सेसफुली ग्रो किया है, जिसकी सक्सेस जो है ना सोनली कैपिटल रेजिंग के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, बट ओवरऑल चेंज द कंपनी एक्सपीरियंस बाय बिकमिंग अ लिस्टेड एंटिटी। मतलब सिर्फ कैपिटल के ऊपर नहीं बट लिस्टेड एंटिटी होने की वजह से जिन्होंने कुछ लोकल एग्जांपल्स भी हमारे साथ शेयर करें। जस्ट बिफोर आई हैंड इट ओवर टू शाहिद, आई वांट टू टेल एवरीबॉडी, हमारी ऑडियंस कोई तकरीबन 150 लोग हैं जो हमें इस वक्त व्यू कर रहे हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज वो Q&A या चैट या उन विंडोज में पोस्ट करें। आफ्टर हमारे 2-3 क्वेश्चंस और हैं, उसके बाद हम आपके क्वेश्चंस को ही एड्रेस करेंगे। थैंक यू। ओवर। अच्छा राइदा, मैंने ये देखते हुए कि ज़ाहिर आईपीओ की बात होगी तो मैंने थोड़ा डेटा रखा था अपने पास। तो उसमें जो पिछले 8-10 सालों में तकरीबन 37 कंपनीज का आईपीओ या सेकेंडरी पब्लिक ऑफरिंग हुई है, जिसमें माशाल्लाह से हमारी मार्केट में कोई 250 बिलियन की रेजिंग हुई है, इक्विटी रेजिंग।
ठीक है ना, इसमें गवर्नमेंट भी बेनिफिशियरी थी, गवर्नमेंट ने भी अपना, जैसे आपने भी जिक्र किया, HBL और UBL में अपना सिग्निफिकेंट स्टेक जो है वो डाइवेस्ट किया, और यही ट्रांजैक्शन हुई थी पिछले 10-12 साल में, जो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांजैक्शन हुई थी। अच्छा, इन सारी 250 बिलियन में अल्लाह का शुक्र है कि हमारा शेयर जो है वो ओवर 80% रहा, और हमारी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन में कोई ओवर 60% रहा। तो माशाल्लाह से वी आर वेरी लकी एंड ब्लेस्ड कि सारी ट्रांजैक्शन हुई। जो आपका सवाल है कि ऐसी कंपनीज जिसमें लगता हो कि अदर देन जस्ट लिस्टिंग मनी, और भी क्या एट्रीब्यूट्स थे जिसकी वजह से वो, तो मैं कहूंगा कि देयर आर मेनी कंपनीज जिन्होंने बहुत ज्यादा ग्रो किया आफ्टर द लिस्टिंग, although the market has not grown that much, but those companies have grown a lot, and not only grown a lot, they have become the largest player in their industry as well. मैं कहूंगा कि अगर हम सिस्टम्स को देखें, 4 बिलियन का IPO हुआ था, वो आज उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 144 बिलियन की करीब हो गई है। मतलब उसमें 36 टाइम्स का रिटर्न जो है, पिछले मेरे ख्याल से 2015 की बात है, और आज 7 साल हुए हैं, उसमें जो है वो आपको 36 टाइम्स का रिटर्न हो गया। उसमें न सिर्फ रिटर्न तो एलिमेंट दूसरा है, उसकी रेवेन्यू और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ देखें, वो भी बड़ा जबरदस्त ग्रोथ हुई है। आप ई फंड का अगर IPO देखें, वो हमने 37 बिलियन का उस वक्त रेज हुआ था 2014 में, 37 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन थी, सॉरी, रेसिंग तो बहुत कम थी। लेकिन जब 3 साल के बाद, ये 2014 की बात है, और 17 में हमने कोई इसका 37 बिलियन की रायदा पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन थी, और हमने कोई 20 बिलियन की ऑफर फॉर सेल किया, विच वॉज अराउंड 23-24% ऑफ द कंपनी एट दैट टाइम। वो हमने 3 साल के अंदर ही किया। तो इतनी जबरदस्त वैल्यूएशन जो है वो इन्वेस्टर्स को भी मिली, और कंपनी जो है वो मुसलसल डिविडेंड देते जा रही है। वो अलग डिविडेंड है जो लोगों को मिल रहा है, वो हमने अभी कैलकुलेट नहीं किया इसके अंदर, लेकिन वो एक अलग चीज है। सो लिस्टेड होने के बाद जो जर्नी जो कंपनी की हुई, और वो जर्नी में बहुत सारे एलिमेंट है जो कि हमने जिक्र किया, कि उसमें उनकी डेट डेट को रेज करने की कैपेसिटी बढ़ जाना, उसमें उनकी गवर्नेंस सिस्टम को इम्प्रूव होना, उनकी ग्रोथ प्रोजेक्ट्री, उनके कंपटीशन, उनको मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा कंपेटिटिव होना, बिकॉज उनको क्वार्टरली रिजल्ट बड़े अच्छे देने हैं, तो वो हर वक्त मेहनत करते रहना। तो ये सारी चीजें और ये बहुत अच्छी रही। इसके अलावा मैं बताऊं, एवेंसियन का IPO जो है 2014 में हुआ था, वो 1.4 बिलियन का उसकी जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन थी। आज जो है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन तकरीबन 25 बिलियन की हो गई है, विच इज 18 टाइम्स। तो पिछले 8 सालों में 18 गुना जो है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन को बढ़ जाना। हम अभी की एग्जांपल देते हैं, 2019 में 40 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन का इंटरलूप कंपनी, जिसको रायदा कोई नहीं जानता था कि ये पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का लार्जेस्ट सॉक्स मैन्युफैक्चरर है। मतलब मुझे भी हैरत हो रही थी जब हम इसका IPO करने लगे थे। हम उनके साथ 1-2 साल पहले से अटैच थे, लेकिन जब मुझे याद पड़ता है जब हम गॉन्ग सेरेमनी हमने करी और असद उमर साहब उस वक्त थे, तो उन्होंने भी ये कहा कि यार मुझे भी नहीं पता था, बल्कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि पाकिस्तान में कोई एक एंटिटी है जो कि दुनिया की लार्जेस्ट, या तो लार्जेस्ट है या सेकंड लार्जेस्ट है, सॉक्स मैन्युफैक्चरर, जो कि नाइकी को देती है, एडिडास को देती है, प्यूमा को देती है, टारगेट को देती है, जिसका 100% जो है वो एक्सपोर्ट होता है, और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो ये विजिबिलिटी जो हमने सबसे पहले बात कही थी ना, ये विजिबिलिटी उसी वक्त आती है जब आप IPO में आते हैं। फिर जब ये कंपनी आई, तो कंपनी का मुझे याद है कि उस वक्त जो है उनकी टोटल सेल्स होती थी कोई अराउंड 35-36 बिलियन। 2019 की बात कर रहा हूँ। आज 2022 में फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है, उसका 115 बिलियन से ज्यादा की सेल हो गई है। मतलब मैं वैल्यूएशन की तो अभी बात ही नहीं कर रहा, मैं उनकी सेल्स की बात कर रहा हूँ। तो एक होता है ना कि एक बात तो ये है कि हमारी मार्केट ने इतना परफॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से वैल्यूएशन अनलॉक नहीं हुई, लेकिन कंपनी ने कितना जबरदस्त परफॉर्म किया कि 35 बिलियन की सेल 115 बिलियन पे पहुंच गई 3 सालों के अंदर, और उसके प्रॉफिट्स भी अकॉर्डिंगली बढ़े। और ये नहीं है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं बढ़ी, आज 52 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई है, जो कि 52 मतलब 50% से ज्यादा का रिटर्न मिला है। ऑल्दो मार्केट का रिटर्न जो है 2018-19 से मुझे लगता है 8-9% से ज्यादा नहीं है।
तो ये सारी जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये सारी जो कंपनीज है, जो सक्सेस स्टोरीज हैं, ये वही हैं जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री में दूसरों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। अच्छा, बड़ी बात ये रायता कि ये जो कंपनी, एक जो इंटरलूप वाली कंपनी है, ये तो पाकिस्तान में आफ्टर 20 ईयर्स या आफ्टर 15 ईयर्स पहला टेक्सटाइल का आईपीओ था। तो एक तो ये बहुत बड़ा एक मसला था कि यार टेक्सटाइल का आईपीओ हो कैसे सकता है, टेक्सटाइल वालों की बुक्स ऑफ अकाउंट्स इतने कोई एक्साइटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं होते। लेकिन उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, उन्होंने अपने सिस्टम्स को, उन्होंने अपने बोर्ड को, इतना जबरदस्त बोर्ड है उनका कि वो भी बात खत्म हो गई कि ये टेक्सटाइल कंपनी है। ये टेक्सटाइल जो हमें बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज था उस वक्त कि यार ये इतना सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है जिसमें हमने 5.2 बिलियन रेज किया, कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स कैसे अकोमोडेट करेंगे टेक्सटाइल की कंपनी का आईपीओ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उनका बोर्ड, उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो सब चीजों की वजह से जो है ये सब हुआ और आगे की जर्नी भी बहुत अच्छी है। जी राइट। थैंक यू शाहिद। आपने एक आउट ऑफ ऑल द कंपनीज दिया, एक आपने एक्सपेक्टेड कंपनी का एग्जांपल दिया। तो इसको सामने रखें, अगर हम इस वक्त पस मंजर में देखें पाकिस्तान का जो सिचुएशन चल रही है, हमारा बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस या कह लें होप्स अटैच्ड है विद एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री, एंड बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि इस वक्त प्राइवेट उसमें रजिस्टर्ड है एज अ प्राइवेट एंटिटी, मगर वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो क्या जो एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनीज हैं व्हेन दे कम और वो कंसिडर करती हैं और एक्सचेंज पे लिस्ट होती हैं, तो उससे जो उनकी ओवरऑल ग्लोबल स्टैंडिंग है, या कह लें कि ग्लोबल मार्केट में क्योंकि वो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनके कस्टमर्स होते हैं, उनके क्लाइंट्स होते हैं, उनकी उनकी ट्रांजैक्शंस हो रही होती है, तो उसमें जरा आप हमें ब्रीफ करें कि लिस्टिंग ऑन द एक्सचेंज किस तरह ऑगमेंट कर सकता है या इम्पैक्ट कर सकता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज को ओवरऑल ग्लोबल स्टैंडिंग और रिकग्निशन में। जी जी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए, क्योंकि वो एक्सपोर्ट करते हैं और वो इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल अपना। और जब वो अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं तो वो एलसी से भी करते हैं, वो ओपन अकाउंट से भी करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट से भी करते हैं। तो जिन सप्लायर से जब वो रॉ मटेरियल मंगवाते हैं तो वो उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है अगर वो लिस्टेड कंपनी है, और वो उनको ज़रूरी नहीं होता, वो ओपन अकाउंट में भी दे देती है, वो कॉन्ट्रैक्ट में भी दे देती है। तो उनके इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स बिकम्स ईजियर बीइंग अ लिस्टेड कंपनी। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। एक्सपोर्ट जब करते हैं तो उनकी एक ग्लोबल, जाहिर है उनकी लिस्टेड कंपनी होती है, ब्लूमबर्ग में उसका नाम आ रहा होता है, उसकी वैल्यूएशन आ रही होती है, उसके अकाउंट्स आ रहे होते हैं, इजीली एक्सेसिबल है, वो प्रॉपर उसका ऑडिट सिस्टम है, प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, प्रॉपर बोर्ड है, उनकी वेबसाइट प्रॉपर होगी। तो सारी चीजें जो ऑल टुगेदर जो है उससे एक बहुत बड़ा कंफर्ट आपके इनके 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 बायर्स को आता है, इनके कस्टमर्स को आता है और इनके सप्लायर को आता है। तो बोथ वेज they get advantage in getting the raw material timely and without any further due diligence, because the due diligence is always at a higher degree। और जब वो देते हैं, जब वो एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको वहां से भी जो फंडिंग है, पैसे जो हैं वो एडवांस जल्दी मिल जाते हैं। कस्टमर जो है वो देखते हैं कि ये कंपनी जो है वो इनकी कंटिन्यूटी और इनकी बिजनेस कंटिन्यूटी और लॉन्जेविटी जो है बड़ी स्ट्रांग है, वो उसको बड़ा एडवांटेज लेते हैं। तो और दूसरे जो आपने कहा कि एक्सपोर्ट वाली कंपनियां जो मैं देखता हूँ जो पिछले आईपीओ हुए हैं, उसमें एक तो इंटरलूप था और एक सिस्टम्स था और एक एवेंसियन था, जिसके हायर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट होता है। तो तीनों की मैंने पहले एग्जांपल दे दी कि तीनों की वैल्यूएशन भी सबसे ज्यादा बड़ी है, और तीनों के सेल्स भी सबसे ज्यादा बड़ी है, और तीनों के प्रॉफिट्स भी अच्छे बढ़े हैं। ठीक है ना। तो एक तो ये कि ये बहुत ही कोइंसिडेंस है, बल्कि कोइंसिडेंस नहीं कहूंगा मैं इसको, कि ये चीजें टेस्टेड हो गई हैं कि ये सारी चीजों की वजह से बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। और मैं तो रेकमेंड करूंगा, इस वेबिनार के थ्रू मैं रेकमेंड करूंगा ऑल दी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स के जो एक्सपोर्ट करते हैं
कि वो अपने आप को थोड़ा विजिबल करें थ्रू आईपीओ। ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंसी आती है, आपके वैसे ही अकाउंट माशाल्लाह से इतने अच्छे, इतने ट्रांसपेरेंट होते हैं। और उसको अगर आप विजिबल करेंगे विद दी फॉरेन इन्वेस्टर्स, विद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, आपको बहुत ज़बरदस्त वैल्यूएशन मिलेगी। और आपको फिर अगली जर्नी जो होती है कि अगर आपको ग्रो करना है, आपको फर्दर जो है वो, अभी आप देखें ना कि अभी जो लिस्टेड कंपनीज हैं जो टेक्सटाइल सेक्टर में है वो ग्रो करने जा रही हैं, वो फर्दर प्लांट लगाना चाह रही हैं। और उसके लिए उन्होंने ये भी कहा है कि हम फर्दर स्पेशल राइट शेयर्स देके करेंगे। तो ये सारी चीजें जब आप लिस्टेड स्पेस में आ जाएंगे तो आपकी जो जर्नी जो आपको जो अगले 10 साल में करनी है, मुझे लगता है वो 3-4 साल में वो जर्नी हो सकती है अगर आप लिस्टेड स्पेस में आ गए और आपने शेयरिंग करना शुरू कर दी विद द माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स। उससे अल्टीमेटली जो आपके पोर्शन की जो वेल्थ है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इससे एक तो ये नहीं होता कि वेल्थ बढ़ना, एक ये होता है कि एक कॉन्फिडेंस आना और एक सेटिस्फेक्शन आना। तो वो एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन का एलिमेंट होता है कि मैंने अपनी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। क्योंकि एक्सपोर्टर्स को तो बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है और बहुत ज्यादा हम डिपेंडेंट हैं एक्सपोर्ट के। तो मैं मेरे ख्याल से, और अच्छा दूसरी सबसे बड़ी बात जो स्टॉक एक्सचेंज ने और एसईसीपी ने बहुत आसानी कर दी है, मतलब ये चीज भी आपको मैं बताऊं कि पहले तो 25% का फ्री फ्लोट की रिक्वायरमेंट होती थी। फिर दूसरा स्टेज आया कि 12.5%, और फिर 3 साल में 25% करना है। अब ये रिक्वायरमेंट भी कम कर दी गई है, अब तो ये 5-10% पे आ गई है कि आपका अगर कैपिटल बड़ा है तो आप 5% करें, अगर आपका कैपिटल छोटा है तो आप 10% से आईपीओ कर लें और 15% पे अगले 3 साल में जो है वो वहां तक लेके जाएं। तो ये इतना जो कंफर्ट और इतना जो ईज जो प्रोवाइड दिया गया है एससीसीपी की तरफ से और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से, मेरे ख्याल से इसको यूटिलाइज करना चाहिए ऑल द एक्सपोर्ट कंपनीज और अपनी ग्रोथ। क्योंकि पाकिस्तान में एक्सपोर्टर्स को टैक्सेस में भी छूट है और ये पता नहीं कितने अरसे तक रहती है, लेकिन ये टैक्सेस में छूट है। तो जितनी जल्दी आप ग्रो कर सकते हैं लिस्टेड स्पेस में आने से, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल इसके ऊपर कोशिश करनी चाहिए। सॉरी मैंने अभी लंबा टाइम ले लिया। अच्छा, नहीं नहीं, बिल्कुल सही। इट्स वेरी गुड दैट यू आर एक्सप्लेनिंग इट इन डिटेल, बिकॉज हमारी ऑडियंसेस को इसकी इन डिटेल जब समझ होएगी तो फिर देन दे विल बी एबल टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। अच्छा, इसमें एक दो और चीजें भी आपने बहुत अच्छी कही, जो मैंने कुछ पॉइंट्स भी नोट किए कि आप अपने सप्लायर से एक पॉजिटिव वो भी रख सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी है, कॉन्फिडेंस आता है, आपकी निगोशिएशन पावर भी अच्छी होती है, और लोकल बैंक्स भी आपको लोअर रिस्क कंसिडर करते हैं, बिकॉज लिस्टेड कंपनीज की विजिबिलिटी और मटीरियलिटी डिस्क्लोजर्स की वजह से वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, और बैंक्स भी आपको डेट या लोन देते वक्त भी या ट्रांजैक्शंस के पर्सपेक्टिव से आपका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। एक और चीज इससे निकलती है कि शोकेसिंग होती है, दैट इज वन आल्सो अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि जब लिस्टेड कंपनीज अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर रही होती है, एनुअल रिपोर्ट पब्लिश कर रही होती हैं, अपनी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात करती हैं, तो दुनिया में आपकी विजिबिलिटी ईएसजी या सस्टेनेबल कंपनीज की उसमें आने लगती है। जब ये होता है तो बहुत सारा इन्वेस्टर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको लेके फर्दर चलते हैं टू क्लोज टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ दिस इंफॉर्मेटिव डिस्कशन। आई वुड से कि एक थोड़ा सा आप हमें बताइए कि लिस्टिंग के बाद या लिस्टिंग से क्या बेनिफिट होता है इन टर्म्स ऑफ, अगर कोई कंपनी आगे चल के लिस्टिंग के बाद जॉइंट वेंचर, पार्टनरशिप, अलायंसेस करने का सोचती है, अपने आप को फर्दर दूसरे पार्टनर्स ढूंढती है, इंटरनेशनल फॉरेन इन्वेस्टर्स या इवन लोकल फॉर दैट मैटर, तो डू यू थिंक के लिस्ट होने के बाद ये relatively easy होता है या मुश्किल होता है to enter into another partnership with other outlets, और exit easily available होता है कि नहीं? So थोड़ा सा इसके ऊपर हमें बताइए, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास potential issuers आते हैं जो कहते हैं कि नहीं, मैंने अभी एक international buyer या JV करनी है, तो क्या मैं लिस्ट कर लूं, मैं कर सकूंगा उसके बाद, तो एक ये चीज है, एंड उससे क्या फायदा या आपकी नजर में क्या बेनिफिट है ये इसमें? जी जी, इसके तो बहुत ज़्यादा फायदे हैं, क्योंकि जब आप लिस्टेड हो चुके होते हो तो आपकी वैल्यूएशन जो है वो अनलॉक हो चुकी होती है। तो जब वैल्यूएशन आपकी अनलॉक हो जाती है तो ये बड़ा आसान हो जाता है
पोटेंशियल एक्वायरर के लिए या पार्टनर के लिए to look at the company, to see the numbers, to see the valuation of the company, and accordingly, make a price for that shareholding. So इससे तो बहुत बड़ा एक, और दूसरा एक उनको बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस हो जाता है, बहुत बड़ा ट्रस्ट हो जाता है कि उसके बुक्स ऑफ अकाउंट जो हैं वो बड़े जो है वो जेन्युइन हैं, ऑडिटेड हैं, और उसमें उसकी ड्यू डिलिजेंस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, और वो ऑलरेडी जो है वो उसका लेवल ऑफ ड्यू डिलिजेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें उनको एक बड़ा कंफर्ट मिल जाता है। उनका प्रॉपर बोर्ड होता है, तो वो बोर्ड के साथ बोर्ड की कंपोजिशन को देखते हैं, और उसकी वजह से जो है उनका एक कंफर्ट और उनका एक ट्रस्ट जो लेवल जो है वो बढ़ जाता है। और जाहिर है, बहुत अच्छी बात करी आपने कि देयर आर मेनी पार्टनर्स इन अ कंपनी। किसी पार्टनर को अगर निकलना भी होता है, किसी पार्टनर को अगर एग्जिट करना होता है, तो उसको पता है कि वैल्यूएशन क्या चल रही है, स्टॉक प्राइस क्या चल रही है, वो उसी स्टॉक प्राइस के करीब करीब जो है या कोई प्रीमियम या कोई डिस्काउंट लगा के वो जो है वो ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो जो मार्केट जो है वो असाइन कर लेती है एक वैल्यूएशन उस कंपनी की, और वो कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो हर किसी के लिए जो है वो आसान होता है उसको जो है उसके ऊपर फैसला करना और उसको उसके ऊपर कंप्रोमाइज करना, बिकॉज अदरवाइज पार्टनर्स की एक रिलेशनशिप्स होती हैं, ठीक है ना, उसमें बहुत सारी सेंसिटिव रिलेशनशिप्स होती हैं, और वो रिलेशनशिप जो हैं वो जाहिर है वो कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाती है अगर आप अनलिस्टेड हो, और फिर अगर आप उसकी वैल्यूएशन करने की कोशिश करें। जो बायर होगा वो कम वैल्यू लगाएगा, जो सेलर होगा वो ज्यादा वैल्यू लगाने की कोशिश करेगा, लेकिन जब मार्केट होगी तो वो वैल्यूएशन अनलॉक हो चुकी हुई होती है, और वैल्यूएशन उसकी नजर आ रही होती है। और पोटेंशियल एक्वायरर के लिए भी वो कंपनियां देखें ना, हमारी मार्केट में भी बहुत सारी ट्रांजेक्शन अभी चल रही हैं, ठीक है ना, तो उसमें आसान होता है उन कंपनी को उस इंडस्ट्री में अगर उस प्लेयर को लेना हो जो लिस्टेड प्लेयर हो, कि उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर कंफर्ट बहुत ज्यादा होता है, उसके उसमें आप विदाउट इवन रीचिंग आउट टू द पोटेंशियल कंपनी आप पहले ही वर्किंग कर लेते हो। जब आप पहले ही वर्किंग कर लेते हो तो बहुत सारा काम आपको इवन उनको बताने से पहले ही आपने अपना होमवर्क कर लिया होता है, और इसके बाद आप उसको रीच आउट करते हो। तो दिस इज वेरी इजी, आई मीन दिस इज वेरी easier and comfortable for all the companies who have ambition to go for partnerships for the growth of the company, उसको बड़ा करना चाहते हैं, उनका स्केल को बहुत ज्यादा बड़ा करना है, तो उसमें बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं। अभी हमने जो है वो कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस में हम इन्वॉल्व हैं जिसमें वो न सिर्फ लिस्टिंग होगी, और लिस्टिंग के बाद जब उसकी वैल्यूएशन डिपिक्ट हो जाएगी थोड़े अरसे में, तो दूसरे पार्टनर्स उसमें आएंगे। तो वो उसका वही यही है, उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि पहले वैल्यूएशन उसकी उसी तरह पता चलेगी जब लिस्ट होने के बाद। न मैं उसकी वैल्यूएशन बता सकता हूँ क्या होगा, न सेलर बता सकता है, न एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर बता सकता है, एग्जिस्टिंग स्पॉन्सर बता सकता है, बट लेट द कंपनी गेट लिस्टेड, और इसके बाद अगले 6 महीने में जो वैल्यूएशन अनलॉक होगी उसके ऊपर ट्रांजैक्शन जो है वो फर्दर होगी, और इसको और फर्दर स्केल अप किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है जाहिर है पार्टनरशिप के लिए, एक्विजिशन के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा मोड है, लिस्टिंग का मोड, और जिसके बाद जो है पोटेंशियल एक्वायरर को भी आसानी होती है और एग्जिस्टिंग कंपनी को भी बहुत आसानी होती है। ग्रेट, थैंक यू। बहुत अच्छा आपने एलैबोरेट किया इन चीज़ों पे, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स ये वाली चीज़ भी होती है कि प्राइसिंग या इन आपके अगर आप अपने सेल ऑफ शेयर भी करने जाते हैं लिस्टेड कंपनी के लिए बड़ा आसान होता है, क्योंकि एग्जिट ऑप्शन भी, प्राइस ऑलरेडी है, विजिबल प्राइस है, इट्स ट्रांसपेरेंट ऑन लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज बाय न्यूट्रल लो मार्केट फोर्सेस। तो एंड देन दूसरा एक और एंगल इसमें है कि जी दे कैन एग्जिट इजीली बिकॉज थ्रू द स्टॉक मार्केट व्हेन दे सेल देयर ओन शेयर, सेल ऑफ शेयर में या अपना वो, तो वो अपने लिए उनके लिए भी एग्जिट का ऑप्शन आसान होता है। कुछ हमारे पास अभी क्वेश्चंस हैं, आई विल टेक देम वन आफ्टर द अदर। तो कुछ मैंने रिप्लाई भी किए कुछ क्वेश्चंस को ऑलरेडी,
किसी ने पूछा है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग इन ऑन द जेम बोर्ड, इसकी हम आपको ईमेल पे डिटेल दे देंगे आई वुड से, क्योंकि आज की बात कर रहे हैं हम, लेट्स कवर दैट टॉपिक। हाउ डज लिस्टिंग हेल्प अ कंपनी गो ग्लोबल? तो थोड़ा सा शाहिद साहब ने इसके ऊपर एक्सप्लेन किया। लिस्टिंग हलाल? ये जरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। शाहिद, आप इसके ऊपर बात करना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। आई मीन ये तो जाहिर है, अगर आपको हमेशा एक्विटी रेजिंग अगर आप करोगे, अगर आपका ऑलरेडी बिजनेस जो है वो उस बिजनेस में है जो कि हलाल है, तो फिर तो शरिया कंप्लाइंट हुआ। मतलब एक्विटी रेजिंग इज ऑलवेज शरिया कंप्लाइंट कंपेयर टू डेट रेजिंग। डेट रेजिंग में भी अगर आप उनके पास जाते हो शरिया कंप्लाइंट, जैसे आप इस्लामिक बैंक के पास जाते हैं, या आप बैंक की, कन्वेंशनल बैंक की इस्लामिक विंडो से अगर आप लेते हैं, तो वो भी डेट रेजिंग जो है वो शरिया कंप्लाइंट हो गई। लेकिन एक्विटी रेजिंग तो इज प्योर शरिया कंप्लाइंट है, जिसमें इसीलिए आप देखें ना कि देयर आर सो मेनी कंपनीज इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो कि 100% शरिया कंप्लाइंट है। 100% शरिया कंप्लाइंट का मतलब ये होता है कि उन्होंने इवन इस्लामिक बैंक से भी लोन नहीं लिया, तो और अपने आप को बिल्कुल शरिया कंप्लाइंट रखा है। तो यहाँ हमारा बोर्ड है, एक मीज़ान का इंडेक्स है, जिसमें जितनी भी कंपनीज है वो शरिया कंप्लाइंट हैं, उनका अपना बिजनेस शरिया कंप्लाइंट है, और उनका जो डेट लेवल है वो कम है। और कुछ कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनका डेट लेवल 0 है, जिन्होंने, जिसको हम कहते हैं 100% प्योर शरिया कंप्लाइंट। सो लिस्टिंग जो का मोड है वो तो 100% शरिया कंप्लाइंट। थैंक यू। एक और क्वेश्चन है, इज अ प्राइवेट कंपनी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज? अच्छा, इसके ऊपर तो मैं आपको जरा क्विकली मैं ही जवाब दे दूंगी कि प्राइवेट कंपनी को पहले पब्लिक होना होता है अपना स्टेटस चेंज करके रजिस्ट्रेशन से, उसके बाद आप आके एप्लीकेशन कर सकते हैं ऑन द स्टॉक एक्सचेंज टू बिकम अ लिस्टेड कंपनी थ्रू अ कंसल्टेंट टू द इशू कहते हैं, एडवाइजर या कंसल्टेंट को, जो कि शाहिद साहब हैं और मल्टीपल और हमारे हैं। पूरी लिस्ट मौजूद है हमारी वेबसाइट के ऊपर कंसल्टेंट टू द इशू की। आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपको ब्रीफ करके आगे फिर आपको रेकमेंड कर सकते हैं टू मीट विद वेरियस कंसल्टेंट्स। रायदा ने जो जी कंसल्टेंट टू द इशू कहा ना, तो इसका हमने एसईसीपी के साथ और स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर हमने उसका वर्ड लीड मैनेजर भी कर लिया है, क्योंकि दुनिया भर में इसको लीड मैनेजर कहा जाता है। तो जब हम बाहर ग्लोबल पार्टनर्स के साथ जब बात करते हैं और मुलाकात करते हैं, और जब कोई ट्रांजैक्शन मिलके करते हैं, तो उनको लीड मैनेजर ज़्यादा जो है वो उनको समझ आती है। तो हमने उसका लीगल वर्ड भी कंसल्टेंट टू द इशू एंड लीड मैनेजर मेरा ख्याल से हो गया है। So very good. We can use it interchangeably. Advisor, lead manager, consultant to the issue, CTI. अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन है, व्हाट इज IPO? IPO इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। शायद साहब इसके ऊपर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें, फिर हम नेक्स्ट पे मूव जी जी। करते हैं। जब कंपनी को, किसी भी कंपनी को, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी को पैसों की जरूरत होगी, ठीक है ना, फंड्स की जरूरत होगी, या फंड्स ना भी जरूरत हो, वो अपने शेयर्स अगर बेचना चाहता है, तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, पहले सबसे पहला पब्लिक ऑफर करेगा, सो दैट यू नो वो ऑफर किया जाए, और वो कंपनी के जितने शेयर्स ऑफर किए जाएंगे वो रेडिली अवेलेबल होंगे बाइंग और सेलिंग के लिए। सो उतना फ्री फ्लोट जो है वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर के पास जाएगा। सो दिस इज द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल कैपिटल रेजिंग, इनिशियल इक्विटी रेजिंग फ्रॉम द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, एंड ओनली दोज शेयर्स विल बी रेडिली अवेलेबल फॉर बाइंग एंड सेलिंग। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सही क्वेश्चन उन्होंने आपके लिए पूछा है। कैन वी एक्सपेक्ट अपकमिंग IPOs स्पेशली इन द एग्जिस्टिंग करंट सिचुएशन? कुछ IPOs हैं इस वक्त आप लोग के पास, या हम लेकर आ रहे हैं जो स्टॉक देखिए, एक्सचेंज पे? आईपीओस तो बहुत सारे हैं। आईपीओस तो की लाइन बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया है कि टाइमिंग थोड़ी ख़राब हो गई है। और जो है वो करंट टाइमिंग में आपको भी पता है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन की जो ऐसी टाइम है, और हमारा जो मार्केट का मल्टीपल है वो जो है वो 3.5, 3.5 to 4 टाइम्स के बीच में आ गया है। और कोई भी कंपनी जो है इस मल्टीपल पे आईपीओ करने का
का वो प्लान नहीं कर रही। वो चाह रहे हैं कि हमें मल्टीपल अच्छा मिल जाए। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने स्पॉन्सर जो दूसरे इशूअर्स हैं उनको पिच करें कि भाई आप कम मल्टीपल पे भी आप आईपीओ करें, लेकिन जो है वो हर किसी के अपने अपने प्लान्स होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि रीट सेक्टर में आईपीओज आ रहे हैं, और हम एक आईपीओ इंशाल्लाह 14 और 15 दिसंबर को एक आईपीओ हो रहा है, जो कि फिक्स प्राइस का आईपीओ है, जिसमें बुक बिल्डिंग में नहीं है। वो आईपीओ हो रहा है, वो रीट स्ट्रक्चर है, जिसमें एक डिफाइंड रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी है, अपार्टमेंट्स हैं। वो अपार्टमेंट्स को, और वो उसकी एक लिमिटेड लाइफ है। वो 4 साल के अंदर फिर वो कंपनी खत्म हो जाएगी, वो 4 साल में वाइंड अप हो जाएगी, और उसके जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो इन्वेस्टर्स को मिल जाएंगे। तो ये रीट के आईपीओ जो हैं वो आप देखेंगे बहुत ज्यादा अगले 1-2 सालों में, बिकॉज देर आर 9 रजिस्टर्ड रीट्स with the SECP, and as per the regulation they have to go for listing within 3 years. तो कुछ एक साल से हैं, कुछ 1.5 साल से हैं। तो अगले 1-2 सालों में मुझे लगता है कि बहुत सारे रीट्स जो हैं वो आईपीओ के लिए आएंगे। और अगर मार्केट के मल्टीपल बेहतर होते हैं तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कंज्यूमर सेक्टर में भी, और केमिकल सेक्टर में भी, और दूसरे सेक्टर्स में जो आईपीओज करना चाहती हैं। Great, thank you, Shahid. So I would say कि this is a very good time कि companies जो plan कर रही हैं IPO करना और listing करना, they should start their work, क्योंकि ground work में उन्हें कुछ time लगेगा अपनी books को audit करने में, अपने बकाया और documentations, अपनी status को public करने में, obviously private to public conversion है, ये सारे steps लेके अपनी तैयारी करें, और फिर market की multiples बेहतर होते ही they should be looking at issuing their shares. How to decide if a private company should list itself? Any conditions or checklist? कोई eligibility के perspective से में भी क्या चीजें होती हैं कि कंपनी को तैयारी, बेसिकली ये सवाल है कि क्या कंडीशंस या एलिजिबिलिटी या चेकलिस्ट? जी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर प्राइवेट कंपनी है, उसको तो पहले पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, जैसे रायदा ने बताया, वो पहले पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी हो जाए। उसका मिनिमम, अगर मेन बोर्ड में अगर उसको करना है तो मिनिमम 200 मिलियन का कैपिटल होना चाहिए पोस्ट आईपीओ। अगर 200 मिलियन से ज़्यादा है, अगर 200 मिलियन से लेके 2 बिलियन तक अगर है, तो उसको जो है वो मिनिमम 15% का करना है आईपीओ, और उसको 25% तक लेके जाना है। फिर वो दूसरे इसके थ्रेश होल्ड हैं, अगर ज़्यादा कैपिटल है, बड़ा कैपिटल है, तो उसको कम करना है, 10 से 15% करना है, उसी पे ख़त्म करना है। तो ये सारे मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके अलावा आपको ये सोचना है कि बुक बिल्डिंग करनी है या फिक्स प्राइस करना है। अगर फिक्स प्राइस करना है तो आपको जो है वो अंडर राइटर्स को लेना है साथ में। आपको इसमें प्रोस्पेक्टस बनाना है, जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन रखनी है, फाइनेंशियल अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन, कंपनी करती क्या है, कंपनी के प्लान्स क्या हैं, कंपनी की यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स क्या होंगी, जो पैसे जो मार्केट से रेज किए जाएंगे उसकी यूटिलाइजेशन क्या होगी अगले सालों में, तो वो बताना होगा। तो ये सारी चीजें, ये 3 से 4 महीने का प्रोसेस होता है बिटवीन स्टॉक एक्सचेंज एंड SECP। और इसमें स्टॉक एक्सचेंज जो है इसको अपलोड करता है कमेंट्स के लिए सारे पब्लिक को भी, और इसके बाद एक लिस्टिंग कमेटी होती है, फिर उसको वो अप्रूव करती है, फिर SECP में जाती है, फिर SECP में कमिश्नर्स की मीटिंग होती है और उसको वो अप्रूव करते हैं, और इसके बाद जाके वो अवेलेबल होता है। फिर हमें प्रोस्पेक्टस जो है वो पब्लिश करना होता है, और वो 8 महीने से पुराना ऑडिटेड अकाउंट नहीं होना चाहिए। तो ये एक रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी अच्छा, पूरा बोर्ड कॉम्पोजिशन होना चाहिए, जैसे हमने पहले बात करी। तो पहले बोर्ड बनना होगा जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होगा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होगा, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो जैसे हमने अभी पूरी मीटिंग में डिस्कस किया कि वो बहुत ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन होता है ग्रोथ में और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में। तो वो एक, ये सारे के सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से, ये अगर हम इंशाल्लाह, हमारी जब जर्नी होगी ग्रोथ की इंशाल्लाह पाकिस्तान की, तो ये सारी चीज़ें बड़ी यूजफुल होंगी आगे की हमारी स्टेज के लिए इंशाल्लाह। थैंक यू। वन मोर क्वेश्चन Abdullah साहब है, उनका है, can you ask Mr. Habib if a company can list with capital majorly depending on borrowings? तो क्या इनकी कंपनी लिस्ट हो सकती है?
देखिए, अगर आपने बोरोइंग लेके वो कैपिटल है तो वो तो जाहिर है आपने कहीं से भी बोरो किया है, लेकिन अगर कंपनी के फाइनेंस में, कंपनी के बुक्स में अगर इक्विटी आ रही है और आप ये कह रहे हैं लॉन्ग टर्म डेट भी है, ठीक है, लेकिन उसमें कोई इशू नहीं है। बस ये है कि वो शरिया कंप्लायंस शायद नहीं होगा, और उसमें जो है वो लेकिन आपका 200 मिलियन का मिनिमम कैपिटल होना चाहिए, मिनिमम इक्विटी कैपिटल होना चाहिए, भले इक्विटी जो भी हो, लेकिन कैपिटल होना चाहिए। तो आपका एसेट और आपकी जो लाइबिलिटीज हैं वो सही है, टोटल एसेट होगा, डेट एसेट विल बी फाइनेंस्ड बाय लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। तो अगर आपका 200 मिलियन का कैपिटल है और लाइबिलिटीज ज्यादा हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि आपका एसेट बहुत बड़ा है। लेकिन आप कर सकते हैं, बट आप जो है वो उन लोगों के पास जाएंगे जो कि कन्वेंशनल इन्वेस्टर्स होंगे और कन्वेंशनल फंड्स होंगे, और वो जो है वो शरिया कंप्लायंट वाली इंडस्ट्री को आप शायद उससे रेज नहीं कर सकेंगे। थैंक यू। एक और क्वेश्चन है, ये जरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट will the withdrawal of IPO tax exemption affect the amount of investors investing? If yes, how much? And is the PSX in touch with the government to revise this? तो I think first part का तो आप जवाब दे सकते हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आईपीओ में इन्वेस्टर के लिए बोल रहे हैं या इशूअर के लिए बोल रहे हैं? वही तो मैं पूछ रही हूँ। बेसिकली इनका क्वेश्चन थोड़ा सा है तो इन्वेस्टर फोकस, बट वो कह रहे हैं कि आईपीओ टैक्स एग्जेम्पशन से इन्वेस्टमेंट में कोई फर्क, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर्स को फर्क पड़ेगा। आई नहीं, डोंट मेरा थिंक ख्याल इससे से, कोई डायरेक्ट। हाँ, मेरे ख्याल से जो है मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो जब आईपीओ होते हैं ना, ज्यादातर हम बुक बिल्डिंग में, जितने भी आपने आईपीओ देखे होंगे पिछले 8-10 साल में, ज्यादातर जो है वो बुक बिल्डिंग के थ्रू आते हैं और वो अपनी प्राइस डिस्कवरी करते हैं, और उसमें मेजर पोर्शन जो है वो बुक बिल्डिंग के जरिए हो जाते हैं, और उसकी मिनिमम जो है वो 10 लाख की लिमिट होती है, ठीक है ना। तो 10 लाख वाला जो शेयर होल्डर है, और इसके अलावा वो इतना नहीं कंसीडर करता कि वो आईपीओ में टैक्स का एडवांटेज लेने की कोशिश करे। वो तो मामूली सा होता है, और उसके उसके जो जाहिर है आईपीओ में इन्वेस्ट करने के बाद जो उसकी वैल्यूएशन को उसने प्रोजेक्ट किया हुआ होता है कि ये हो जाएगी, उसका एडवांटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जाहिर है हमारे यहाँ, बिकॉज हम हमारे जो रेवेन्यू के शॉर्टफॉल रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे एवेन्यूज देख रही होती है कि जहाँ से हम टैक्स लगाएं और टैक्स की एग्जेम्पशन भी ख़त्म करें। तो ये इस वजह से हुआ है। मुझे लगता है कि जहाँ गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अगर सिचुएशन बेहतर होगी टैक्सेस की, तो वो दोबारा से ये मेरे ख्याल से लिस्टिंग में इन्वेस्टमेंट करने की जो एग्जेम्पशन है वो दोबारा बहाल कर सकते हैं, टैक्स की एग्जेम्पशन। लेकिन मेरे ख्याल से इससे कोई ये फर्क नहीं पड़ेगा कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो नहीं आएंगे या नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। ग्रेट, बहुत शुक्रिया। एक और क्वेश्चन है, हाउ कैन वी इंश्योर दैट वी आर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक एक्सचेंज विद शरिया कंप्लायंस? इसका तो खैर बहुत ही सिंपल रिस्पॉन्स आई वुड से है कि स्टॉक एक्सचेंज पे जो कंपनीज हैं, KMI ऑल या KMI 30, ये दो इंडिसेस हैं जो कि कराची मीज़ान इंडेक्स का जिनको कहते हैं, ये शरिया कंप्लायंट कंपनीज का है, जो कि स्कॉलर्स, जो कि मीज़ान बैंक के स्कॉलर्स भी हैं, उन सब में वेट करते हैं। एक रेगुलर प्रोसेस है स्टॉक एक्सचेंज का, जो शरिया कंप्लायंस कंपनीज को देखती हैं, मॉनिटर करती हैं और वेट करके उनको इंक्लूड कर रही होती है शरिया कंप्लायंट इंडेक्स में, जो कि KMI ऑल इंडेक्स है। उसमें कोई 252 कंपनीज हैं, और KMI 30 इंडेक्स है जिसमें KMI की 30 कंपनीज लिस्टेड है। सो ये दो इंडिसेस हैं जिसमें जो कंपनीज हैं वो आपको फौरन पता चल जाता है, और फिर वेबसाइट पे भी आपको लिस्ट ऑफ शरिया कंप्लायंट कंपनीज जो कि KMI इंडिसेस में है इंक्लूडेड वो मिल जाती है, एंड देन यू कैन मेक अ चॉइस कि आपको इन्वेस्ट करते वक्त आप उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करें। व्हाट आर द मेन highlighted benefits in raising capital by listing? तो आई थिंक हमारे पूरा इसमें हमने टोटल बात की है। इसकी समरी मैं कर देती हूँ इस वक्त कि जी, ब्रांडिंग,
visibility, assessment, alliances, international recognition, global recognition, foreign investments, foreign partnerships, इन सब को अगर आप लेके चलें तो ये सारे बेनिफिट्स हैं इन एडिशन टू रेजिंग मनी, ताकि आपकी कंपनी एक्सपैंड कर सके और डाइवर्सिफाई कर सके. कैन अ कंपनी गेट लिस्टेड विदाउट आईपीओ? शाहिद, ये आई वुड डायरेक्ट यू टू दिस क्वेश्चन टू यू. कैन अ कंपनी गेट लिस्टेड विदाउट आईपीओ? आई थिंक जेम बोर्ड के ऊपर या डायरेक्ट लिस्टिंग में कुछ आती है ना कंपनीज के, वो रेज नहीं करती, जैसे वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो जाती है. जैसे कंपनी ऑलरेडी अगर लिस्टेड है वो, और वो बिल्कुल ही उसके बहुत ही कम एसेट्स हैं ही नहीं, और वो छोटे से वो एग्जिस्टिंग स्पॉन्सर्स के को बाय आउट करके अपने जो एसेट्स हैं वो उसमें मर्ज कर देते हैं उस कंपनी को, और वो आईपीओ, वो कैपिटल भी रेज नहीं करते, इक्विटी भी रेज नहीं करते, लेकिन अपने सारी चीज़ों को लिस्ट करवा लेते हैं. तो ये हुआ है. जैसे यूनिटी जो है, इसमें इसकी जो लिस्टिंग हुई है वो इनिशियल कैपिटल रेजिंग नहीं थी, ठीक है ना. तो वो तो एग्जिस्टिंग जो कंपनी थी उसको अक्वायर किया, जो कि कोई ऐसी कोई बड़ी एक्विजिशन नहीं थी, वो बहुत ही छोटी सी कंपनी को अक्वायर किया गया, और उसमें सारे अपने एसेट्स डाले गए. फिर राइट शेयर इशू किए गए. राइट शेयर को जो है वो सब्सक्राइब किया स्पॉन्सर ने, एग्जिस्टिंग स्पॉन्सर ने, और फिर जाके ये कंपनी बहुत बड़ी हो गई, और माशाल्लाह से अब बहुत बड़ी कंपनी हो गई है, जिसमें जो 28-29% जो है विलमार की शेयर होल्डिंग है, और उसमें विजिबिलिटी, बड़ी स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी है, फॉरेन पार्टनर है, स्ट्रॉन्ग पार्टनर है. तो जाहिर है ऐसे भी हुआ है जो इनिशियल कैपिटल रेजिंग नहीं हुआ, लेकिन उसने अपने आप को लिस्ट करा लिया, लेकिन आगे ग्रोथ के लिए पैसे उसने कंपनी के अंदर लगाने पड़े. तो उसने तो इस तरीके से भी होता है, थ्योरेटिकली होता है, लेकिन बहुत ही रेयर केसेस हैं इसके मार्केट में. ओके, थैंक यू. एक अच्छा, जो रायदा ने कहा था, रायदा आपने जो जेम बोर्ड वाला कहा था वो भी बिल्कुल सही है. वो भी, उसमें भी यही होता है कि जेम बोर्ड इज अ स्मॉलर बोर्ड, और उसमें वो कंपनी जिनकी बहुत ही कम कैपिटल होता है, मेरे ख्याल से रायदा 25 लाख का ना, 15 या 25 लाख का अगर होता है तो वो आ सकती है. जो 200 मिलियन वाली नहीं, बल्कि 25 लाख वाली कंपनी भी आ सकती है. और उसमें जो है अगर आपको रेज नहीं भी करना, अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो हैं उसमें अपने आप को लिस्ट करा लेते हैं जेम बोर्ड में विदाउट रेजिंग मनी, तो वो ऑलरेडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी हो जाती है जेम बोर्ड में विद स्मॉलर कैपिटल. और वही पार्टनर्स होते हैं जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं, और वो रेज भी नहीं करते, और फिर बाद में जाके जो है उनको अगर ग्रेजुएट करना होता है दूसरे काउंटर में जाने के लिए, फिर वो रेज करते हैं कैपिटल. ग्रेट, बहुत शुक्रिया शाहिद. एक और क्वेश्चन है. वैसे तो हमने मोर लेस कवर कर लिया है बोर्ड के रोल को, बट ये क्वेश्चन है, हाउ डज द कंपनीज बोर्ड एंड मैनेजमेंट प्रोवाइड ओवरसाइट एंड गवर्नेंस ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल रिस्क? तो इसके ऊपर अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें, ऑल्दो इट्स अ वेरी अच्छा, इसके न्यू ऊपर जो है ना, फीचर. पाकिस्तान में इतनी पेशरफ नहीं हुई है, लेकिन ग्लोबल बहुत ज्यादा पेशरफ हुई है. और अब पाकिस्तान में इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और क्लाइमेट और इन सब के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा ESG कंप्लायंस, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो काम हो रहा है. और बहुत सारी कंपनीज अपने आप को उस मोड में लेके जा रही हैं, ताकि टू अट्रैक्ट दोज फंड्स जो कि ESG कंप्लायंट फंड्स भी होते हैं, और जो उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनका हायर डिग्री ऑफ ESG कंप्लायंस है. और वो भले उनके पोटेंशियल रिटर्न्स कम भी अगर होते हैं, तो वो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता. वो चाहते हैं कि पहले हमारे बेंचमार्क्स पूरे हो जाएं, और फिर अगर उसके रिटर्न्स कम भी हों तो उनका यूनिवर्स बहुत छोटा हो जाता है. उनका यूनिवर्स सिर्फ वही कंपनीज होता है जो कि इस थ्रेश होल्ड पे पूरे उतरते हैं और ये कंप्लायंस सिस्टम को पूरा करते हैं, और इसके बाद वो, तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है. और मेरा सवाल भी बहुत अच्छा है कि अगर आप अपने आप को पहले से ESG कंप्लायंट करें और फिर करके लेके आएंगे, तो बाहर की जो कंपनीज हैं वो अच्छे तरीके से इन्वेस्ट भी करेंगी और उसको सपोर्ट भी करेंगी. देयर आर मेनी फंड जो कि जिनकी एथिकल
कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिनके इन्वेस्टर्स जो हैं उन सब चीज़ों को देखते हैं, तो फिर वो कंपनीज को आइडेंटिफाई करती हैं। Great. बहुत शुक्रिया. Thank you, Shahid, for taking out time from your busy schedule. And I would also like to thank हमारे सारे participants को कि उन्होंने time निकाला इसको सुनने के लिए. और obviously I hope कि it has been of value to you, this knowledge and the information that we've imparted. Furthermore, जिनको और details चाहिए तो आप directly शाहिद साहब से भी connect कर सकते हैं. शाहिद साहब, अगर आप अपना email address भी दे दें, if you want to, or you could give an email of your business people, or otherwise Pakistan Stock Exchange के ऊपर info@psx.com.pk पे contact करके आप हमें email भी drop कर सकते हैं to answer your queries. शाहिद, over to you, and then we'll call it a day. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना email address. सॉरी यार, Shahid Habib at arifhabib.ltd.com. Great. Thank you, Shahid साहब. बहुत शुक्रिया आपका. And thank you to our participants. Just to inform all of you, in a few weeks time ये webinar हमारे YouTube channel पे भी available होगा, and हम इसको share भी करेंगे अपने Facebook वगैरह पे. Facebook के ऊपर भी आप जाके वापस इसको review कर सकते हैं webinar को for more details. And over to us. इंशाल्लाह next time हम आपके साथ एक और webinar लेकर आएंगे और इस लिस्टिंग को लिस्टिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे, इसके बेनिफिट्स हाईलाइट करेंगे. इंशाल्लाह we'll continue doing this. Thank you very much जी. अल्लाह हाफिज. Thank you so much. Thank you, Thank you so much, all of you. Thank you. You're welcome. अल्लाह हाफिज.